नमस्कार, मैं आपके बीच लोकेश कुमार सिंह, ताल ठोक के मुद्दे के साथ। और मुद्दा क्या है आप भी समझते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के महान योद्धा से आप लोगों के बीच में मिला देने जा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के महान योद्धा जो 1971 की लड़ाई बहुत दमखम से लड़ी, और ऐसे योद्धाओं के साथ हो रहे अन्याय पे मैं आपकी बात करना चाह रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अन्याय क्या है। 1965 के भर्ती और उस समय किस किस परिस्थितियों में रह के लड़ाई लड़े हैं, उसका पेंशन, मेडिकल बोर्ड आउट होने के बाद पेंशन 10,000, 10,500, 11,000 रुपये करीब बन रही है। आवेदन लिखने पे कोई सुनवाई नहीं होती। और मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ गुरमेज साहब से। गुरमेज साहब, आपको नमस्कार है। नमस्कार। आप कब भर्ती हुए थे? 25/5/65 1965 ਨੂੰ ਜੀ ਭਰਤੀ। 1965 में 25/5/1965 में भर्ती ਹਾਂਜੀ, हुए। ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹਾਂ ਜੀ। जी ਤੇ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ BSF ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। जी। आपका शुभ नाम? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, तो रहने वाले कहाँ के हैं? पंजाब के? ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। अच्छा, पंजाब के हैं। ਹਾਂਜੀ आप हमारे लिए भी आदरणीय है और सभी पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी आदरणीय है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बिल्कुल जी। हाँ? ਹਾਂਜੀ जीता जागता उदाहरण 1971 की लड़ाई के शायद आपके साथ के लोग तो अब नहीं होंगे शायद। ਹਾਂਜੀ 23 ਬਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜੀ 71 ਵਾਲੀ। जी ਅਸੀਂ 10 ਜਵਾਨ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥ, जी। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਚੌਂਕੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। जी ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। जी ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਟੈਕ। जी। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਬੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਲਈ, अच्छा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਡਗਨ ਸੇ ਖੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ 20 ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा, उनको वीर चक्र में। ਹਾਂਜੀ 20 ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕੋ ਚੌਂਕੀ ਲਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਲਈ, जी। ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। जी। ਹਾਂ ਬੁਰਜ ਚੌਂਕੀ। अच्छा, तो ये सर आप फिर रिटायरमेंट कब हो गए आप? 1980 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। हाँ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੰਗਧਾਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਲੱਗੀ ਸੀ जी JNK 'ਚ। जी ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੀ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ। हाँ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਸੀ जी ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਲਤਾ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ BSF। ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਲਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ। जी ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਛੂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੈਟਾਗਰੀ E ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਟਾਗਰੀ C ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ JNK 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, जी ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਏਰੀਆ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। जी ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। मैं ये आपसे एक पूछना चाहूँगा एक बात। आपने भारत के उस युद्ध में भाग लिया, हाँ जी, जिस युद्ध में 90,000 सैनिक ने पाकिस्तान के जो है घुटने टेके थे, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो उसमें आपकी सहभागिता क्या थी? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। जी ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਜੁਅਲਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੇ 6.5 ਫੁੱਟ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ। जी ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਲਾਗੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਘੱਲਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा, सुन लीजिए, 6.5 फीट हाइट थी और साहब की भी हाइट 6.5 फीट है। हमारे भी आदरणीय और पूजनीय, पूरे पैरामिलिट्री फोर्स के आदरणीय पूजनीय है, वो चाहे DG साहब हो या वर्तमान में कोई सिपाही हो, सबके लिए आदरणीय है। 1971 की लड़ाई इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से लड़ी। और कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी आपने? ਹੋਰ ਜੀ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਸ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ DG ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, जी ਤੇ ਇਹ ਬਈ ਆਈ ਵਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਗੈਡ ਲਾਉਣੇ, ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। जी ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾਤਾ। जी ਤੇ ਨਾਇਕ ਦਾ ਮੈਥੋਂ ਕੇਡਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਧਾਰੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ठीक नहीं गा तू महकमे मेडिकल बोर्ड आउट किया गया और 1980 में ये रिटायरमेंट चले आए। हाँ जी मेडिकल बोर्ड आउट करने के बाद इन्हें भेज दिया गया और 30% इनको दिखाया गया मेडिकल में कि इनके मेंटल में जो है दबाव बना हुआ है, और 30% कैटेगरी बना के इनको भेज दिया गया 54 बटालियन से। और उसके बाद जो पेंशन बन रहा है, अभी कितना बन रहा है आपका पेंशन? 10,250 रुपये में बेसिक मिल रही है। अब देख समझ सकते हैं 10,250 रुपये बेसिक बन रही है। 1980 में रिटायर, 1965 में भर्ती, और देश की वो क्रांतिकारी युद्ध में भाग लिया जहां 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने घुटना टेका, 6.5 फीट हाइट, और उस परिस्थिति के बाद लड़ने के उपरांत अब दर टुकड़े खाने की मजबूर है। साहब का एक बड़ा बेटा आज से 26 दिन पहले गुजर गया है, और ये बात मैं आप लोग के बीच में इसलिए रखना चाहता हूँ कि परिस्थिति कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस महकमे में रह के जिस देश के लिए काम किया वो जवान इस प्रकार से भटके, मेरे नज़र में तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं भी करता हूँ, और देश के इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग से आवेदन करूँगा, जो लोग किसी भी पद पे हैं, सर की सहायता करें। अभी ये कोर्ट गए थे एक एडवोकेट के पास, पैसा उस एडवोकेट को दिए भी थे, उस एडवोकेट ने साहब से पैसा भी ले लिया, ठग लिया, और उस केस को पेंडिंग चला रहा है। और उस प्रकार की घटना मुझे देखने में जो आई है, मैं उस एडवोकेट को फ़ोन किया तो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। ये दिल्ली की बात है, क्यों सर बात सामने की है? बिल्कुल जी, हाँ जी। फिर भी मैं इस चीज़ पे मुद्दे पे आ रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि एडवोकेट योग्य होगा तो आपको जीत दिलाएगा, एडवोकेट योग्य नहीं होगा तो नहीं दिलाएगा। फिर भी मैं हाथ जोड़ के बीएसएफ के उन सभी महकमों में, या सभी लोग जितने जो भी सहायता बनता है किसी भी विभाग के हैं, और मैं बीएसएफ के उन विभागाध्यक्ष से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि 71 के लड़े युद्ध की आज आपके पास जीते जागते उदाहरण गुरमेज साहब हैं, और नायक पद से रिटायरमेंट आए हैं, अमी वाला और फिरोजपुर के रहने वाले हैं पंजाब के। तो मैं यही कहूँगा कि इनके पे फिक्सेशन सही तरीके से किया जाए। कम से कम आज के डेट में अगर 15 साल सर्विस करके ये आए हुए हैं, मेडिकल बोर्ड आउट किया गया था, तो मुझे मेरे हिसाब से और अन्य के हिसाब से अगर संशोधन किया जाएगा तो कम से कम 17 से 20 हज़ार तक पेंशन बनेंगे। तो इसमें मैं सभी लोगों से ही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि तत्काल प्रभाव से सुधार करें। कोर्ट जाने की इस परिस्थिति में, इस उम्र में, अगर आपके कोई भी हो, किसी के पिता जाएं, इनके अगर बच्चे होते तो कोई डीजी होता, कोई आईपीएस होता। सच्चाई ये है। बिल्कुल। जब साहब का जन्म 1946, देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, तब का जन्म है साहब का, और फिर उसके बाद इन्होंने जो जो कर्मात की हैं वो सामने है आपके बीच। तो मैं इसके लिए सभी लोगों से हाथ गुजारिश करूंगा कि 54 बटालियन कमांडेंट साहब के पास भी आवेदन जो है साहब ने अभी लिख रहे हैं, तथा आदरणीय डीजी साहब को भी लिख रहे हैं बीएसएफ के, और मुझे आवेदन दिखाए भी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि तत्काल प्रभाव से इस पर संशोधन करके उचित कार्रवाई करते हुए सर का जो पेमेंट बनता है उसको दिलाया जाए। कम से कम आज के डेट में 80 के रिटायरमेंट है तो कम से कम 17 से 20-22 हज़ार के करीब इनका पेंशन बनना चाहिए। और इन्होंने क्या, सर आपने किस कमांडेंट से बात की थी, क्या बोला था उन्होंने? 54 बटालियन कमांडर संग गल कीती ਸੀ। कब? ਇਹ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। जी, क्या बोले उन्होंने? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਮਿਲ ਰਹੇ, 9,000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ 9,000 ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। 9,000 ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੀ? बस इन्हीं गल करके एक कमांडेंट साहब ये भी कह रहे हैं कि ये गलत है, दे किया जाए। मैं तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आपके घर से कुछ नहीं जाता, जिसकी मेहनता है, जिसने देश के लिए किया है, ये पूरे भारत के इतिहास के गवाह हैं, जिन्होंने उस 90,000 सैनिकों को घुटने टेकाने में आपके सामने हैं, जीते जागते उदाहरण है। तो कृपया कर इनके पेंशन में, इनके कागज़ पर संशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से पेंशन की सुधार करते हुए दे करने की कृपा की जाए। अन्यथा ये कोर्ट तो जाएंगे, लेकिन जो बेइज्जती होगी ये गलत है। इनका मान सम्मान, हम पूरे देश का, राष्ट्र का मान सम्मान है, और अपने मान सम्मान के लिए मैं घोषणा करता हूं कि मैं इनकी केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। लेकिन उसके पहले भी मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इनके आवेदन जाने के उपरांत इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पे सबका ध्यान रहना चाहिए। आप सभी लोग आदरणीय, या चाहे डीजी साहब हो, कमांडेंट साहब हो, या जो भी लोग साहब लोग हैं, जिसके हाथ में भगवान ने अगर ताकत दी है, जिसके हाथ में भगवान ने
उस कलम की जोड़ दी है, उससे समुचित कार्रवाई करते हुए दे करने की कृपा करें। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੀਏਡੀ ਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਦਾ 2700 ਰੁਪਈਆ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ 3200 ਮਿਲਦਾ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇਰੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ये स्थिति क्या विभाग में होता है कि फाइल नहीं मिलता है? ये लेटर मेरे पास पाया गया है, मैं आप लोग बताता हूँ। ये कोई है सुनील कुमार पयाल, डीसी एडजुटेंट फॉर द कमांडेंट 54 बटालियन बीएसएफ, प्रशासन निदेशालय शिकायत एवं निवारण प्रकोष्ठ, पेंशन सेल ब्लॉक 11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली। प्रशासन निदेशालय ईओपी सेक्शन ब्लॉक नंबर 10, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड। रिकॉर्ड को भेजा गया है और पीओ के पेंशन अकाउंट सेल को भेजा गया है। सीमांत मुख्यालय शिशु दक्षिणी बंगाल, ठीक है। क्षेत्रीय मुख्यालय शिशु बल कृष्णनगर। आपकी सूचना में आपके पत्रांक संख्या इतने पर कार्रवाई। देखिए भाई साहब, सीधी सी बात है, मेरा एक ही बात बोलना है, आप सभी लोग, जितने भी लोग आपने कार्रवाई की है, फाइल नहीं मिल रहा, उसका दोषी उस बटालियन के कमांडेंट साहब होंगे या रिकॉर्ड सेल के वो लोग होंगे, और साथ में रिकॉर्ड ऑफिस का काम है कि खोज के अपने पेंशन देना। ये 2300 3200 का जो रोजगार है ना, इस भारत में सरकार ने, दिल्ली सरकार ने जो ये योजना चलता है, क्या बोलते, मनरेगा चलता है, उसमें भी उतना नहीं बनाया, उससे भी ज़्यादा बना दिया है। तो ये क्या, ये देश के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए ये सब बातें क्या अनुचित नहीं है? तो कृपया कर हाथ जोड़ के विनती है मेरा कि तत्काल प्रभाव से उचित कार्रवाई करते हुए इनकी जो पेंशन है उसमें सुधार किया जाए, संशोधन किया जाए और अग्रिम कार्रवाई करते हुए दे करने की कृपा की जाए। इसी के साथ मैं लोकेश कुमार सिंह और आदरणीय गुरमेश सिंह साहब को मेरा प्रणाम है। मैं आपका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा, जितना पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए एडवोकेट भी रखूंगा और आपके कागज पे मैं कार्रवाई करते हुए आपको जैसे भी होता है फिर अग्रिम कार्रवाई की सूचना दूंगा। तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपको नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। शब्द नहीं है जी, मेरे कोई शब्द नहीं जैसे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। मैंने किसी ने नहीं पूछा जी आज तक। अरे हम तो आपके बेटे के बराबर हैं। ये स्थिति नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत कीजिए। हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके बेटे के बराबर हैं, ठीक है? तो आप चिंता ना करें, लड़ाई तो लड़नी है, हक तो लेना है, और लड़ने के लिए हक लेने, जो देश के लिए लड़ा है उसके लिए तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।